Good evening, students. So, today we will revise the chapter Why Do We Fall Ill? In the chapter revision, let's begin with the topic health. That what is health? Health means the state of complete physical, mental, and social well being. What does this term mean? इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी की स्टेट है जब हम completely physically, mentally और socially fit होते हैं, that state of our body, it is termed as the health. Physically fit means we are free from any kind of disease, any kind of injury. Mental health means that mental fitness means we are free from any kind of stress, any kind of depression. Okay? And social well-being means that we are able to interact with the members of the society. Okay? हम लोगों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना अगर अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, तो दैट इज़ द सोशल वेल-बीइंग. सो व्हेन एन इंडिविजुअल he or she is completely, that is physically, mentally and socially fit, that person is called as the healthy person. Now if we describe the factors affecting the health, our health, it depends on the various factors like the physical environment in which we are living. If that environment, it is free from any dirty particles, from any dust, from any garbage, then obviously what will happen, we will be free from the diseases. Okay, then comes the social environment. Social environment also affects our health. If we are living in the society where always there is quarrels, जहाँ पर हमेशा झगड़े रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जहाँ पर हमेशा टेंशन्स रहती हैं, तो उस सोसाइटी में हमें मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी. ओके, एंड दैट विल अफेक्ट आवर हेल्थ. ओके, नाउ if we even don't take the nutritious food in our diet, if we don't take the balanced diet, what will happen, our body will not grow properly. That will lead to the various deficiency disorders. So lack of nutritious food is again the factor that affects the health. Now aging is the natural process where in which the process or the machinery of our body, it declines as per the age. So that aging also affects the health. As we all know that the aged persons, their immunity power becomes low. Okay, so they can catch the infections, they can catch the mild infections very easily even. Now here comes the again important question, that is the difference between healthy and a disease free person. So we have defined, we have learned about the healthy person, that what is the definition of the healthy person. So here now we have to also describe about the disease free person. If we talk about in the layman language, अगर हम normal language में बोलें तो healthy and disease free को हम एक ही word मानते हैं, but in the scientific terms both of these terms they are different. Okay, so let's take the view that how the healthy persons, they are different from disease free person. Healthy person, the state of complete physical, mental, social well-being, we have already discussed. Disease free just means that the person is not suffering from any kind of disease, any kind of discomfort. Okay, healthy means in healthy person the health is dependent on the individual physical and social environment. हमने पढ़ा कि factors which on which the health depend, तो उसमें हमने पढ़ा कि individual के ऊपर भी dependent करती है health, physical and social environment के ऊपर भी depend करती है किसी individual की health. But in the case of the disease free, only the disease free state is just related with the individual. Okay, now healthy person is always disease free. If we are saying that the person is healthy, it means obvious है कि वो disease free होगा, but a disease free person is not every time healthy. He may be healthy or may not be healthy. हेल्दी पर्सन इज़ ऑलवेज एंथुजियास्टिक, वो हमेशा रेडी रहता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए. लेकिन जो डिज़ीज़ फ्री होगा, ओके, वो हो भी सकता है कि हेल्दी हो या ना हो. अगर कोई डिज़ीज़ फ्री है लेकिन उसको इंजरी हुई है, ओके, उसको किसी तरह की इंजरी हुई है, तो क्या होगा, वो टास्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो एंथुजियाज़म नहीं शो करेगा. इज़ दैट क्लियर? Now the next topic is personal and community issues, both important for good health.
Personal issue means the issues that are related to the single individual. Okay, now if we talk about the society, no one in the society can live in the isolate manner. कोई भी अकेला नहीं रह सकता सोसाइटी में, सभी को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, सभी फिजिकल और सोशल सराउंडिंग, सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट द कम्युनिटी इश्यूज इट मैटर्स फॉर द गुड हेल्थ. मैंने अभी बताया, अगर आपकी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन है तो ऑब्वियसली आप एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करोगे. लेकिन अगर आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं है, व्हाट विल हैपन देन? आपके आसपास वेक्टर्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मस्कीटोज, फ्लाइज, इनका नंबर इंक्रीज होगा और ये पूरी सोसाइटी में क्या करेंगे? डिजीज़ स्प्रेड करेंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सनल हाइजीन ऑन द नेक्स्ट, personal hygiene is again very important. Like I must say that we should groom ourselves daily. हमें अपनी साफ सफाई, अपनी केयर करनी चाहिए डेली. We should maintain our hygiene. Okay, then only we can prevent ourselves from the disease. अभी आज का current example ले सकते हैं. Nowadays, as we all are familiar that corona is spreading. Okay, it is one of the infectious disease. So सबसे पहले जो हम अपनी हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कर रहे हैं वो अपनी प्रिकॉशंस हैं. ओके, हम अपने लिए स्टेप ले रहे हैं, इंडिविजुअल स्टेप ले रहे हैं, पर्सनल स्टेप्स ले रहे हैं, दैट वी आर वॉशिंग आवर हैंड, वी आर सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स अगेन एंड अगेन. ओके, सो व्हाट आर दीज आर दी स्टेप्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन. ओके, देन वी आर कंसीडरिंग अबाउट द कम्युनिटी इश्यूज ऑल्सो. यानी हम गेट टुगेदर नहीं कर रहे कहीं पर भी, ओवर क्राउडेड एरियाज को अवॉइड कर रहे हैं. ओके, वी आर वेयरिंग द मास्क टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स दे आर having the community issues. So both of these, they are very important for the good health, we must say. Now come to the next, that is the disease. How will you define disease? Disease word, it is made up of two terms, dis plus ease. Disease means without ease, or you can say discomfort or without comfort. So how will you define disease? It is the malfunctioning of the body organ due to one or more reason. ओके, अब डिजीज़ का मतलब है माल फंक्शनिंग मीन्स हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है, बॉडी ऑर्गन्स की, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, यानी अब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा. ओके, सो इट कैन बी ऑफ ड्यू टू मैनी ऑफ द रीज़न. क्लियर? नाउ दीज डिजीजेज, दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. Infectious disease, they are also named as communicable disease, and non-infectious diseases, they are known as non-communicable disease. So let's take the view of the infectious disease. They spread from the diseased person to the healthy person, and they are caused by pathogens. Okay, pathogens, they are the living organisms, they are the microbes which cause the disease. Okay, just I'm mentioning over here which cause the disease, जो disease पैदा करते हैं, cause करते हैं. They are pathogens like bacteria, viruses, they all are example of pathogens. So if we take the example of infectious disease, they are malaria, flus. Okay, जितने भी flus हैं, cold है, they are infectious disease. They can spread from the diseased person to the healthy person. On the other hand, if we talk about the non-infectious disease, they are also called as non-communicable. It means they cannot spread from one person to another person. Okay, so these kind of diseases, they are basically due to the malfunctioning of the organ. Like एक individual है, अगर उसको कोई उसका heart properly work नहीं कर रहा तो he will definitely suffer from the heart diseases. अगर उसका liver properly work नहीं कर रहा तो he will suffer from the diseases which are affected by the functioning of the liver. Okay, so these kind of diseases, they remain confined to the individual only. वो एक individual तक रहते हैं, उस individual से दूसरे individual में spread नहीं होते. Like डायबिटीज़ है. ओके, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो, तो इट इज़ नॉट 100% श्योर कि आपकी फैमिली के मेम्बर्स जो उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं सभी को डायबिटीज़ हो जाएगी. इट इज़ नॉट सो. इज़ दैट क्लियर? So these kind of diseases which do not spread from person to person, they are in fact non-infectious diseases. Now further, diseases are again divided into two more categories dependent upon their duration of time.
Okay, these two categories, they are acute and chronic diseases. Acute means these are the diseases which remain for the short duration. Okay, and they have very less effect on the body organ, क्योंकि बहुत कम समय के लिए हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हमारी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता इनका. लाइक टाइफाइड, मलेरिया, एक हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं. ओके, सो ये डिजीज़ेस जो बहुत कम टाइम तक रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़ेस. एंड सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि इनका ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पे नहीं होता. On the other hand, the chronic diseases, they remain for the long duration. ये हमारी बॉडी में लंबे समय तक चलती हैं, यानी ये वो बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती हैं. ओके, एंड दे हैव ग्रेजुअल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी ऑर्गन. धीरे धीरे, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं डिजीजेस, तो धीरे धीरे ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं. लाइक कैंसर, डायबिटीज़, दे आर द क्रॉनिक diseases which remain for the longer duration. Okay, I hope both the differences they are clear, that what is the difference between infectious, non-infectious, acute and chronic diseases. Both of them, they are important. Now come to the next topic, that is the peptic ulcer. Now the peptic ulcer, it is the disease which was firstly observed that what is the meaning of the word peptic ulcer? Peptic word is related with the digestive system, basically with the stomach. Ulcer means कि deterioration of the wall of the stomach, degradation of the wall, यानी wall खराब हो जाना. ठीक है, wall में holes हो जाना, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं अल्सर. तो पेप्टिक अल्सर क्या है? इरोजन इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, डोडेनम और फूड पाइप. डोडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ देयर वर द साइंटिस्ट कॉल्ड एज रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल. दे फर्स्टली ऑब्जर्व द बेसिक कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर. पहले ये माना जाता था कि जो लाइफ स्टाइल है किसी पर्सन का, उसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है. लेकिन लेटर ऑन दीज टू साइंटिस्ट, दे हैव founded the actual cause of the peptic ulcer, that this peptic ulcer, it is basically due to the infection of the bacteria named as Helicobacter pylori. This is very important, that peptic ulcer is caused by Helicobacter pylori. And again, what are the names of the two scientists who find out the main cause of the peptic ulcer? They are the Warren and Marshall. Both of these, they are even awarded the Nobel Prize in 2005 for their discovery. Now the next one is disease and its causes. Again, important topic. What is the immediate cause and what is the contributory cause? Immediate cause, it is also named as the first level cause. Now these are the causes which are directly responsible for the occurrence of diseases. ये वो causes हैं एक्चुअल में जिनके कारण कोई बीमारी होती है. ओके, ज़्यादातर इनके अंदर हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं, यानी हमारे पैथोजेंस आते हैं. लाइक कोई भी डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है. ओके, तो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल कॉज. या फिर किसी जेनेटिकल डिजीज़ है, जैसे कि सपोज करो किसी में क्रोमोसोम नंबर कम है, तो वो उसका जेनेटिकल डिजीज़ होगा, तो उसमें फर्स्ट लेवल क्या आएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर. इज़ दैट क्लियर? फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा. अब किसी की बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा, तो अगर मैं एनीमिया का नाम लूँ कि एनीमिया हुआ है उसे, तो उसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या आएगा कि उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा, तो वो उसका फर्स्ट लेवल कॉज हो गया. क्लियर? ज़्यादातर इसमें हम पैथोजेंस का नाम लेते हैं. अब आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, जिसका डायरेक्ट रोल नहीं है, इसको हम सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल कॉज भी बोलते हैं. ओके, सो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिजीज़ को अकर कराने के लिए. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो उन पैथोजेंस को इंक्रीज़ करते हैं, उनके एक्सपोजर को इंक्रीज़ करते हैं, जिनके कारण डिजीज़ हुआ है बेसिकली. क्लियर? लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है. फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू दी बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस. ओके, अब स्टेफाइलोकोकस आया कहाँ से? स्टेफाइलोकोकस तो फर्स्ट लेवल कॉज हो गया. अब वो स्टेफाइलोकोकस आया कहाँ से? उसने कंटामिनेटेड फूड खाया उस इंडिविजुअल ने, तो वो जो कंटामिनेटेड फूड हुआ, दैट विल बी दी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज.
Okay, so like unclean water, unclean food, dirty surroundings, lack of public services, they all are the contributory causes. I hope ये दोनों terms clear हो गई हैं आपको. Then comes the various other causes of the disease, like the disease which are caused by infectious agents like bacteria. Bacteria के through diseases हो सकते हैं, like cholera है, ठीक है, TB है. Now disease caused by the viruses, they are AIDS, mumps, herpes. Okay, disease caused by protozoan, malaria, kala azar. Clear? Disease caused by fungus, that is ringworm. Clear? So these are the diseases which are caused by the various infectious agents. Now next is some diseases, they are caused by the nutritional deficiency. अगर हम proper diet नहीं लेते, balanced diet नहीं लेते, उसमें कुछ important components अगर missing होते हैं, then we can suffer from the nutritional deficiency disorders. Like we can take the example, if we don't take the iodine rich diet, अगर हम iodine rich diet नहीं लेंगे तो what will happen, we can suffer from goiter. Okay, if we don't take the iron rich diet, then we can suffer from anemia. If we will not take the vitamin A rich diet, what will happen, it will affect our eyes, okay, our vision, okay, even our skin also. So these are the various kind of the न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. आपकी बुक में टेबल गिवन है, उसमें सभी के बारे में लिखा हुआ है, तो वो टेबल आपने लर्न करना है. नाउ डिजीज कॉज्ड बाय चेंज इन बॉडी फिजियोलॉजी. आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ चेंज आ गया. ओके, लाइक दी अगर हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो आपको क्या हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं. ओके, नाउ डिजीज कॉज बाय सडन चेंज इन बॉडी इन्वायरमेंट. आपकी बॉडी में एकदम से कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसके कारण वो डिजीज हो गया. लाइक आप एक्सरेज के एक्सपोजर में आए, एकदम से आपके बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो गई, चेंजेस हो गए, एंड डिजीज कॉज्ड इज कैंसर. ओके, नाउ डिजीज कॉज्ड बाय जेनेटिक चेंज, यानी जो हमारे जीन्स में ट्रैवल कर रहा है, पेरेंट से हमारे अंदर कुछ ऐसे डिजीजेस भी हैं जो पेरेंट से हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लाइक दी हीमोफीलिया. हीमोफीलिया मैंने आपको बताया था, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को हीमोफीलिया डिजीज़ है. हीमोफीलिया में जो गर्ल्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, और अफेक्टेड कौन होता है, मेल होता है. उनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से मैच्योरिटी से पहले ही मेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. ओके, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, विजिबिलिटी नहीं होती रेड और ग्रीन कलर में, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इंडिविजुअल. तो ये जेनेटिक चेंजेस हैं. क्लियर? नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ डिजीजेज विच आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अनकम्फर्टेबल सराउंडिंग्स. आप कहीं पर मैरिज पे गए हो, या रात को आपके आसपास कोई जागरण है, कोई मैरिज है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, उस दिन आपको नींद नहीं आती. ओके, एंग्जाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस हो जाता है. तो दैट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द अनकम्फर्टेबल सराउंडिंग. आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो आई होप ये टेबल आपको क्लियर हुआ है. नाउ अगेन यू हैव टू लर्न सम कॉमन पैथोजेंस एंड द डिजीजेज. ट्रिपैनोसोमा, बच्चे यहाँ पर स्लीपिंग के स्पेलिंग गलत हो गए, के की जगह जी आएगा, इट वॉज बाय मिस्टेक, सो यू जस्ट करेक्ट दैट. ट्रिपैनोसोमा, इट कॉज द स्लीपिंग सिकनेस. Mycobacterium tuberculosis, it cause the tuberculosis. Leishmania causes kala azar. Ascaris cause ascariasis. Staphylococci, it cause the food poisoning. Now the next topic is means of spread of the infectious disease. Now means of spread of infectious agents means कि किस किस तरीके से, what are the different modes of transmission, what are the different modes of transport of the infectious agent, कि infectious agent किन किन तरीके से फैल सकते हैं. Okay, now some of the infectious agents, they spread through the air. Okay, like the infectious agents which are related with the respiratory system. So whenever we sneeze, we cough, the droplets, they move from one individual to the another individual. So all the kind of common cold, all kind of influenzas, TB, pneumonia, they all can spread through the air.
Clear? Now some of the diseases, they can spread through the water. If we take the contaminated water, the diseases which can spread through the by taking the contaminated, unclean water, uncovered water, when if we drink that, the diseases which may spread through the water or the water-borne diseases, they are cholera, dysentery and hepatitis. Okay, now in the same manner, if we take the contaminated food, अगर हम क्या करते हैं, रोड साइड हॉकर से कोई भी फूड आइटम लेकर खा लेते हैं कई बार, या फिर कोई भी कंटामिनेटेड फूड, अनकवर्ड फूड, वो फूड ले लेते हैं जिनके ऊपर वैक्टर्स ने उनको कंटामिनेट किया है, हाउस फ्लाइज ने कंटामिनेट किया हुआ है. तो अगर हम कई बार वो फूड खा लेते हैं, अगेन व्हाट हैपन, वी गेट सम ऑफ द डिजीजेज. they are the diseases which are caused by taking the contaminated food. Again example is cholera and dysentery. Okay, amoebic dysentery you can say. Then comes the spread through the mosquitoes. अब बहुत सारे ऐसे भी diseases होते हैं जो vectors के through spread होते हैं, mosquitoes के through spread होते हैं. Like malaria, it is spread by female anopheles mosquito. Dengue, it is spread by the Aedes mosquito. Chikungunya, it is spread by the Aedes mosquito. Okay, elephantiasis, it is spread by the Culex mosquito. Now spread through the physical contact. अब कुछ ऐसे diseases भी होते हैं, अगर आप एक दूसरे को टच करोगे या एक दूसरे की कोई भी आइटम्स को टच करोगे, आर्टिकल्स को टच करोगे, तो वहाँ से भी आपको ये डिजीज़ हो जाएगा. लेटेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक दी कोरोना भी अगर हम किसी के आर्टिकल को शेयर करते हैं तो ये स्प्रेड हो सकता है. स्मॉल पॉक्स है. ओके, अगर आप किसी का टॉवल शेयर करते हो, क्लोथ शेयर करते हो, तो ये डिजीज़ स्प्रेड कर जाते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में. नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ डिजीजेस विच कैन इवन स्प्रेड थ्रू दी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, यानी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो स्प्रेड होते हैं, लाइक एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया. दीज आर दी डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम दी वन पार्टनर टू दी अनदर पार्टनर ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्शन. ओके, now next topic is organ or tissue specific manifestation. Organ and tissue specific manifestation means कि हमारी बॉडी सिम्टम्स दिखाती है जब भी हमें कोई डिजीज़ होता है. तो वो जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो किस रास्ते से हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर रिलेटेड होता है कि वो कैसे सिम्टम्स शो करेगा. जब कभी भी हमें कोई भी डिजीज़ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. ओके, एंड वी स्टार्ट टेलिंग द डॉक्टर अबाउट द प्रॉब्लम्स आवर बॉडी इज़ फेसिंग एट दैट पीरियड. तो आप जो करेक्टर्स, जो प्रॉब्लम्स अपने डॉक्टर को डिस्क्राइब करते हैं वो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली. लाइक आप बताते हो कि मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है. सो ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत सारे डिजीज़ के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं. वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ में ही सिम्टम्स शो होते हैं. लाइक मलेरिया में हमें ठंड लगती है. ओके, तो ये एक स्पेसिफिक साइन हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक सिम्टम भी बोल सकते हैं एंड साइन भी बोल सकते हैं. अब ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो पैथोजन है वो किस ऑर्गन के इफ़ेक्ट करेगा. लाइक डाइसेंट्री, एमीबिक जो डाइसेंट्री है उसका जो मेन टारगेट होता है वो इंटेस्टाइन होता है. तो इंटेस्टाइन को अगर वो डैमेज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उसको लूज मोशंस लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है. इज़ दैट क्लियर? वॉमिटिंग हो सकती है. लाइक सेकेंड वन इज़ टीबी इज़ ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है. तो ऑटोमेटिकली उसमें कैसे साइंस दिखाई देंगे? कफ होगा उस पेशेंट को रेगुलर, ठीक है, ब्लड वॉमिटिंग होगी. क्लियर? तो ये साइंस हो गए जो पर्टिकुलरली कौन डिसाइड कर रहा है, जो पैथोजन है वो किस रास्ते में जाकर किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है. इज़ दैट क्लियर? नाउ here one more thing I want to tell you that the sign and severity of the disease. आपको कई बार क्या दिखता है, अगर आपको कोई माइल्ड इन्फेक्शन है तो आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा उस डिज़ीज़ का, लेकिन अगर आपको सिवियर इन्फेक्शन हुई है किसी पैथोजन से तभी आपकी बॉडी में सिम्टम्स शो होते हैं.
आप देखते हो कोरोना के केसेस में भी अगर आप आसपास सुन रहे हो तो कुछ केसेस में आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, ओके, और उनको माइल्ड इन्फेक्शन है, दे आर कोरोना पॉजिटिव, बट फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी वो जिन कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आए हैं वो बहुत कम वायरसेस के एक्सपोजर में आए हैं, तो एक दो वायरस ने उनकी बॉडी को अफेक्ट किया और उनको वो डिज़ीज़ हो गया, लेकिन अभी उनको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। अब सेकंड इंडिविजुअल है, वो बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स के एक्सपोजर में आ गया, बहुत ज़्यादा वायरसेस के एक्सपोजर में आ गया, उसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, बार बार अगर आपको अभी भी क्या बोला जाता है, इन दिनों भी क्या बोला जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। वाई द एम्फेसाइज इज़ गिवन ऑन दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, बिकॉज ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो माइक्रोब्स ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर सकते। ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इन हार्मफुल माइक्रोब से लड़ने में हेल्प करता है। इज़ दैट क्लियर? तो जितना ज़्यादा हम माइक्रोब्स के एक्सपोजर में आएंगे, अगर स्मॉल नंबर होगा तो अननोटिसेबल सिम्टम्स होंगे, यानी आपको पता ही नहीं लगेगा दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और नॉट। अगर आप ज़्यादा माइक्रोब्स के एक्सपोजर में आते हैं, अगर नंबर हाई है माइक्रोब्स का, देन यू कैन बी अफेक्टेड बाय दी सिवियर सिम्टम्स एंड इवन इट कुड बी फैटल, डेथ भी हो सकती है किसी इंडिविजुअल की, ओके। लेकिन बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है फिर क्या होगा, फिर माइक्रोब्स कभी भी हाई नंबर पे हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे माइक्रोब्स आते रहेंगे हमारा इम्यून सिस्टम उसको साइड बाय साइड डिस्ट्रॉय करता रहेगा। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। Principle of treatment includes two steps. The first one is to reduce the effect of disease and second one is to kill the पैथोजन। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपके डिज़ीज़ को डायग्नोज कर लिया कि आपको ये डिज़ीज़ है, ठीक है। अब उसने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। अब वो जो मेडिसिन देगा वो कुछ टाइम पीरियड के लिए देता है कि आपको 5 डेज़ के लिए लेनी है, 7 डेज़ के लिए लेनी है, ओके। तो जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो, क्या पहले दिन ही ठीक हो जाते हो? ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन वो डॉक्टर देता है वो आपके डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को लोअर डाउन करती है। सपोज़ करो कि आपको वायरल फ़ीवर हो रहा है, ठीक है, और आपका फ़ीवर जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए थे 103, 104 रह रहा था, ओके। अब आपने जैसे ही डॉक्टर के पास गए, आपने उसको बताया तो उसने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। जैसे ही आप मेडिसिन लेने लगते हो आपका 1-2 दिन में फ़ीवर 100 आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका इफेक्ट रिड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी फीवर तो है ना, पूरी तरह से तो नहीं गया। पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए सेकंड स्टेप होता है ट्रीटमेंट का। उस सेकंड स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले तो इफ़ेक्ट को कम किया जाएगा डिज़ीज़ के, यानी फ़ीवर जो 104 था 100 तक लेकर आया उसको पहले जो मेडिसिन ली। फिर वो मेडिसिन क्या करेगी, जिस माइक्रोब के कारण, जिस पैथोजन के कारण वो डिज़ीज़ हो रहा है, फिर उसके अगेंस्ट काम करती है और उसको किल करती है, ओके। सो यहाँ से अगेन टू किल दी पैथोजन के टॉपिक में से एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमेशा बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं काम करते, या फिर एंटीवायरल बनाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक दी एंटीवायरल ड्रग्स। व्हाई इट इज़ सो? जो वायरस होता है वो ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ओके। वो इंटरमीडिएट्स होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उनके पास कोई भी अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, उनकी बॉडी के अंदर बहुत कम बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जिस होस्ट के अंदर एंटर करेंगे उसी की ही बॉडी को वो हाईजैक कर कर अपना फंक्शन शो करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो वायरस को तो किल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस के पास अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो किसको जाकर किल करेंगे। वायरस तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है ना, तो उसने तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ले लिया। तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करेगा, वायरस को डैमेज नहीं करेगा। तो इस कारण से जो वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स
नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम लेते हैं ये माइक्रोब्स की सेल वॉल को जाकर डैमेज करते हैं। अब वायरस के पास कोई सेल ही नहीं है तो सेल वॉल कहाँ से हो गई, ठीक है। तो जब उसके पास सेल वॉल ही नहीं होगी तो एंटीबायोटिक्स जाकर कहाँ काम करेंगे। ओके, सो दिस इज़ वाई कि एंटीवायरल ड्रग्स बनाने में प्रॉब्लम आती है और हम एंटीबायोटिक्स को वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। नाउ you all have heard about the proverb in English that prevention is always better than cure. So how can you justify this statement? अब किसी भी इंडिविजुअल को अगर डिजीज़ होता है कोई भी, ओके, इट मे बी एक्यूट, इट मे बी क्रॉनिक, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। ओके, किसी इंडिविजुअल को एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ओके, तो वो जो डिज़ीज़ है उसकी बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो अगर वो पहले ही अपने आप को प्रिवेंट कर लेता उस डिज़ीज़ से, या फिर मैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़ की भी अगर बात करूं तो वो बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है कहीं ना कहीं पर। ओके, तो अगर मैं पहले ही अपने आप को प्रिवेंट कर लूँगी तो क्या होगा, मेरी बॉडी ऑर्गन्स बच जाएंगे। ओके, अब सेकेंडली अगर कोई इंडिविजुअल बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट में लगातार पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको कॉस्टली ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। सेकेंडली क्या करना पड़ता है कि उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, बार बार उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर? तो कंप्लीट ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ओके, देन सेकेंडली क्या है, फैमिली के ऊपर भी प्रेशर जनरेट होता है, फैमिली डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस में रहती है। तो ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग दी प्रिवेंशंस। ओके, देन एक इंडिविजुअल है, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ है। अब कोई भी इंसान अगर आज के टाइम में अगर किसी एक इंडिविजुअल को कोरोना हो जाता है तो क्या है, वो पूरी सोसाइटी के लिए एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया, सब लोग उससे दूर भागेंगे। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल को कोरोना है तो उसको आइसोलेट कराया जा रहा है। इट मीन्स क्यों आइसोलेट कराया जा रहा है उस पर्सन को, क्योंकि वो जो पर्सन है अब एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया। अगर उसने प्रिकॉशंस ली होती तो उसको आज ये स्टेज ना देखनी पड़ती। इज दैट क्लियर? उसको आइसोलेट ना रहना पड़ता। ओके, सो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रिवेंशन। इसीलिए बोला जाता है दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हमें बीमारी हो गई नहीं तो हमें उसका इलाज नहीं कराना पड़ेगा, पैसे ख़राब नहीं करने पड़ेंगे, हमारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं रहना पड़ेगा। ओके, देन कम्स दी how can you what are the different preventive measures that you can take, like we can provide the safe water and food, we can cover the drainage system, avoid overcrowded areas, encourage public hygiene, encourage immunization also। तो ये different measures हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को diseases से prevent कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आप देख सकते हो कि अगर हम कोरोना की बात करें तो इसमें से हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड टू गो टू दी overcrowded areas, okay, we can encourage the public hygiene, we can even encourage the personal hygiene over here। Okay, now next topic is immunization। immunization means the practice of strengthening the immune system। अब हमारी बॉडी के पास एक स्पेशल सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, उस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो जितनी भी मेथड्स हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दे ऑल कम अंडर द इम्यूनाइजेशन। ओके, नाउ द फर्स्ट वैक्सीन, it was described by the Edward Jenner। He had described the first vaccine by working on the cowpox, and the first vaccine was against the smallpox। ओके, अब यहाँ पर वैक्सीन का मतलब क्या हो गया? वैक्सीन होता है एक इंजेक्शन जिसको हम जानबूझकर पेशेंट की बॉडी में अप्लाई करते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जानबूझकर हीट किल्ड माइक्रोब इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ओके, तो पहले ही उसकी बॉडी में वो माइक्रोब चला जाता है और उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अभी उसको वो एक्चुअल में डिजीज़ नहीं हुआ, आपने उसको वैक्सीन दी है। ठीक है, वैक्सीन में क्या हुआ, आपने जानबूझकर
उसकी बॉडी के अंदर डेड माइक्रोब डाल दिया, उसकी बॉडी ने उसको सच का माइक्रोब समझकर एंटीबॉडीज़ बना दी, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर किसी इंडिविजुअल को वो बीमारी फ्यूचर में जाकर होती है तो उसकी बॉडी को उससे लड़ने के लिए देर नहीं लगेगी, उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई होंगी और वो फटाफट से उस माइक्रोब को किल कर देगी अगर एक्चुअल में आएगा। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं वैक्सीन, ओके, और वैक्सीनेशन। अब बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी बन चुकी है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, टीबी है, ओके, इन सब डिजीज़ के लिए वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ उसके बाद अब आपके लास्ट में कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में शॉर्ट नोट दिया हुआ है, दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्लास्मोडियम एंड इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। तो अगर पैथोजन आता है मलेरिया का तो प्लास्मोडियम है, ओके, और अगर वेक्टर आता है तो मस्कीटो है। क्लियर। अब आपको पता ही है कि मलेरिया से हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, कहीं पर पानी को इकट्ठा ना होने दें, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ करें। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। Like next one is the AIDS. AIDS is the disease. The full form is acquired immunodeficiency syndrome. अब AIDS it is not a single disease. AIDS it is a syndrome. इसको हम सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? एड्स का जो वायरस है HIV, ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर जाकर अफेक्ट करता है। इसका टारगेट क्या होता है HIV का? इम्यून सिस्टम होता है। तो ये जाते ही हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाएगा तो क्या होगा, जितनी भी छोटे मोटे डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी को, जितनी भी छोटी मोटी इन्फेक्शंस हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो बहुत सारी इन्फेक्शन इकट्ठे अटैक करती हैं हमारी बॉडी पे, इसलिए इसको हम एक सिंगल डिजीज़ ना कहकर चेन ऑफ डिजीज़ बोलते हैं, दैट इज़ दी सिंड्रोम, ओके। अब आपको पता है कि एड्स कैन बी स्प्रेड बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ओके, फ्रॉम दी अनप्रोटेक्टेड सेक्स बाय द सेक्सुअल कंटैक्ट, ओके, बाय यूजिंग दी सेम सिरिंजेस, सेम रेजर एंड ब्लेड्स, ओके, बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू एड्स क्या करता है, स्प्रेड करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। इज दैट क्लियर? सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दी एड्स? तो उसके लिए भी हमारे पास मेजर्स हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा ऐसा कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेथड, बैरियर मेथड यूज़ करना चाहिए जो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन को रोकेगा, क्लियर, एड्स को स्प्रेड नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर? देन कम्स दी जॉन्डिस. जॉन्डिस इज द डिजीज विच अफेक्ट्स द लीवर, विच अफेक्ट्स द लीवर। जॉन्डिस लीवर को जाकर इफेक्ट करता है। तो क्या होता है, हमारा जो लीवर है वो बाइल पिगमेंट बनाता है, बाइल जूसेस देता है। वो जूसेस हमारे वेस्ट को, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको कलर प्रोवाइड करता है। तो जॉन्डिस के केस में धीरे धीरे ये बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट नहीं होती, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसके कारण हमारी आईज़ और हमारी स्किन पेल येलो कलर की दिखने लग जाती है और हमें इन्फेक्शन, लीवर की इन्फेक्शन की वजह से फीवर होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाती है, क्लियर। और फैट की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती क्योंकि लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में भी। तो अगर सिवियर जॉन्डिस हो जाता है तो दैट लीड्स टू दी हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय दी हेपेटाइटिस वायरस. तो हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. ओके, देन नेक्स्ट डिजीज इज रेबीज. रेबीज को हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं. रेबीज स्प्रेड बाय दी बाइटिंग ऑफ द रेबिड डॉग. ओके, अब रैबिड डॉग के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से रेबीज हुआ किसी इंडिविजुअल को? रैबिड डॉग इट कैरीज दी रेबीज वायरस. ओके, तो जिसको भी रैबिड डॉग काटता है उस पर्सन को, जिसके अंदर भी ये वायरस जाता है, उस पर्सन को पानी से डर लगने लग जाता है. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक डिजीज. जो भी पेशेंट है जिसको रेबीज होती है उसको क्या होने लग जाएगा? पानी से डर लगने लग जाएगा, तो उसको पानी से दूर रखा जाता है. इसके लिए भी हमारे पास इंजेक्शंस हैं. क्लियर, इसकी ट्रीटमेंट है रेबीज़ की. डॉग्स के लिए अलग है. अगर आप कोई डॉग घर में पेट लेकर आते हो तो उसको सबसे पहले रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना चाहिए. एंटी रेबिल
इंजेक्शन लगता है जिसके कारण उसके अंदर रैबीज़ वायरस नहीं एंटर कर सकता। ओके, लेकिन अगर किसी ने एंटी राइबल वायरस नहीं लगाया अपने पेट को और वो रैबिड हो गया और रैबिड होकर अगर उसने किसी को काट लिया तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। ओके, देन कम द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ caused by the bacteria called as Mycobacterium tuberculosis। ओके, ये ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है टीबी। क्लियर? तो लंग्स में अफेक्ट करने की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को रेगुलर कफ रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कफ रहता है, कफ में स्पूटम आता है, स्पूटम मतलब बलगम, खांसी के साथ साथ बलगम आती है, तो इसके लिए स्पूटम का टेस्ट होता है। ओके, कई बार क्या होता है वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है, कफ के साथ वॉमिट होगी और वॉमिट में क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो ये सारे के सारे साइंस हैं टीबी के। टीबी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, बीसीजी वैक्सीनेशन। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है पोलियो मिशन का। ओके, हमारे इंडिया में पोलियो मिशन स्टार्ट हुआ है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं चिल्ड्रन को, 1 to 5 ईयर की एज के चिल्ड्रन को हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। ये जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ये एक वैक्सीन है जिसको हम ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ओके, ओरली दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डेलिब्रेटली पोलियो वायरसेस को, हीट किल्ड पोलियो वायरसेस को चिल्ड्रन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं ओरली, यानी उसको माउथ से ये ड्रॉप्स दी जाती है और उन ड्रॉप्स में क्या है, बेसिकली हीट किल्ड पोलियो वायरसेस हैं। तो अभी किसी चाइल्ड को पोलियो ने अटैक नहीं किया, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा वायरस आता है, पोलियो वायरस आता है और उसको अटैक करता है, तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में क्या बनी होंगी, एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो फटाफट से उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क कर देगी। ओके, अब यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो हार्मफुल बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, चाहे कोई माइक्रोब है या कुछ भी है, जो हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए आया वो एंटीजन है। जो हमारी बॉडी का अपना सेल नहीं है वो क्या है, एंटीजन है, फॉरेन बॉडी। ओके, एंड उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी बनाती है, उस एंटीजन को किल करने के लिए जो हमारी बॉडी सिक्रीशन करेगी, प्रोटीन की आर्मी बनाएगी, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडीज़, ये जो प्रोटीन की आर्मी हमारी बॉडी बना रही है ना, इम्यून सिस्टम जो आर्मी बना रही है एंटीबॉडीज़ की, ये उन टेररिस्ट्स को, उन एंटीजन्स को किल कर देगी। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है और हार्मफुल पैथोजेंस को किल कर रहा है, यानी एंटीजन्स को किल कर रहा है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक बार बुक रीड करोगे, ओके, एंड यू कैन डिस्कस दी डाउट्स। थैंक यू।